So this session is just I'm taking as a blind one. Okay. So it's all about you that you're taking the session on the basis of that you don't know my face and everything. Okay. But even though just you're preparing for those things, it's just like that. It's just like act as a psychological that you're acting like as a mirror. Okay, in front of you, just you're saying each and everything. Okay, on the second session, we'll start on the camera also. Okay. So I will observe each and everything that what you're doing and everything because this is the basic motto. Maybe just you understand on the psychological factor that if you don't know the face or if you don't have an idea that who. So can you brief about your resume? Yeah, sure. So, just to give you an introduction, I am a computer science engineer graduate from Manipal University, Jaipur. Initially, I've done my education from Amity International School. Suppose that I went to Manipal for computer science engineering. After that, being in a computer science field, I somehow understood that I have a love for technology, but I am not that kind of a developer of technology. So that's the very reason. And in the entire journey of college, I think it was pretty beautiful and immenseful for me, wherein I had, had a chance of different venues and exploring my own innate capabilities. So that's when I took up as a position of campus ambassador with Zebronics India, the IT peripherals company. So that's one of the exposures I had in the very initial days where I was asked to promote a product within the college students. Post that, while I was in the journey of my college in my second year, I also had a chance to go to Paris for one of the exchange programs at CESI University, France, wherein I worked with a group of 8 to 9 people from different nationality, different races, to develop a product and present the same to the investors. And then I think in my third year, we were all of us were hit by pandemic, and I think this was a great time when I had to introspect, and that's when I took up various technical courses, trying to understand if I fit in well with technology. But I think with God's grace, I was given an opportunity to intern in MG Motors, the Morrison garages, as a marketing sales intern. So I spent about 2 months over there, and then I also took up an opportunity with Unacademy with their upcoming new project called Graphy. So I took up on that as well. Then after that, sir, I also had a chance to crack an internship to my college within my eighth semester with Dell Technologies. Now, this was predominantly a very new role which Dell was coming up in India. This was a pre-sales role, and we eventually had to support a sales team within the North American region to sell data center solution. So I was a part of it, and with my performance during the boot camp, I was allocated the enterprise division, and I'm very happy to be a part of that particular journey because it gave me a chance to be a part of a crown jewel deal by Dell Technologies PCOE, which was a total of $520 million. So that was a great deal we cracked with Ascension Healthcare, and I think I am just proud of the fact that I had certain contributions in the same, and I was a part of the team. So that was one of the things I had, and the experience was still good because with my short span of journey, I was still given a chance to mentor certain new hires. I think this was the time when I felt that my position does not really lie in the back end sales, not in the pre-sales position. And this was also the time where I observed that the global trend of business is moving towards software as a service. So SaaS shift was taking place at that. Abhinay, stop here only actually. I'm really sorry for interruption and Yeah, everything. no worries, sir. First point over here, okay, means your communication is up to the mark. Okay. Am I audible? Yeah, yeah, you are. Okay. So first thing whatever just you're saying, that's absolutely correct and on the way just you're doing each and everything. But first thing when you're giving your interview, if the panel is asking for the introduce yourself, okay, just you have the time for 30 seconds only. Okay. Okay. First thing is all about that. Think on the panel side. Okay. If the 30 seconds only been there, so you don't have to introduce each and everything at that moment. Okay.
that what you're doing, what the specialization should be there. Because within 30 seconds, if you say each and everything, it's not going thorough of those things. Okay. Okay. First key factor. Okay. So make it short and crust of each and everything. Okay. Okay. Don't go for the detailing things. Okay. I, Okay. I, I Yeah. misunderstood. Actually, I thought I need to give you a gist of my resume. Ha. Ha. Okay. Ha. Ha. That's why just I'm saying stop here only. Okay. अभी मैं आपको ना हर जगह पे पिन पॉइंट करूंगा. नहीं नहीं Okay. आप For एक्चुअली each and सर. every single things. Okay. So first thing, just prepare for the 30-second introduction part. Just write it anywhere. Okay. Yeah. 30-second interview introduction part. Okay. Just I'm writing somewhere so that I can forward it to you. So 30-second means it's the psychological factor first thing that if you give the brief and glimpse each and everything about what you have done at the introduction part, the mentor will bore at that moment that okay fine, he has done this thing, this thing, this thing, this thing. Okay. Anyway, they will ask each and everything from their side, whatever just you have written on the resume. Okay. Second thing, that whatever this you have written on the resume, each and every time, everything just thorough about each and every scenario. Don't take as a number or anything while taking the introduction part. Okay. Okay. Means which you have written as quality 160% quality, correct? Means department target and everything. Okay. Don't say those things. Little bit glimpse. Okay. Uh, till here, whatever just you have told me that 10 to 15 sentence. In 10 to 15 sentence, you never ever exile your thoughts and process. Okay. What you are actually. Okay. First I of got all, it. when we are giving the introduction, the person known about these things. Okay, I'm really sorry. The person knows about your character, what kind of the character you are. Okay, so I'm not saying that make it as a funny way, but make it as an interesting way, so that the other panel will think about this thing. Okay, fine, just will go further. देखो, अगर पूरा का पूरा अगर रिज्यूम ओके, जैसे मेरा इंटरव्यू जो IIM अहमदाबाद में हुआ, ठीक है, तो दे थिंक दैट व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज दैट. ओके. Make the crisp of each and every scenario of your which you have written on the resume, first of all. Okay. Second thing, that come on your own side. Okay. That what you are. Okay. Means say about your hobbies and the other thing also. I think so. On your resume, you didn't written anywhere as a hobbies, right? I have written that in the ISB application. What ISB is the. application, correct. So second thing, just focus on your hobby side. Okay. Okay. So they more concern about your hobbies actually. अच्छा. Okay. कि आपका हॉबीज क्या आपने किया, क्या नहीं किया, एंड वेरी कीन, वेरी डेप्थ अबाउट दोज थिंग्स. कि आप जो भी हॉबीज किए हो मतलब जो भी एज अ आई थिंक सो यू हैव डन ड्रामा एंड टेक द पार्ट इन द ड्रामा एंड द अदर थिंग्स, राइट? It's basketball and social service. ओके. बास्केटबॉल एंड सोशल सर्विस. तो बास्केटबॉल में वो लोग ये पूछ सकते हैं एट दैट मोमेंट दैट बास्केटबॉल में अभी क्या चल रहा है. Okay, which player do you like, and why you are liking those players? Okay. Okay, उससे आपका कैरेक्टर पे निकल के आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. मतलब जब हॉबीज पे आप आओगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट करेंगे जब आप अपने बारे में पहले बोलोगे. थोड़ा पॉइंट को समझना है यहाँ पे. ठीक है. आपके पास 30 सेकंड का सिर्फ इंट्रोडक्शन है. ठीक है. 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन में अभी आपने बोला जितना होगा, आपको ध्यान होगा आप 30 सेकंड से ऊपर हो चुके थे.
हाँ हाँ, बहुत आराम से। मतलब मैं तो सर आपको रेज्यूमे का अपना जिस दे रहा था। आई थॉट आई हैव टू वॉक यू थ्रू नहीं द नहीं नहीं, रेज्यूमे। मुझे मालूम है। आई अंडरस्टैंड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि देखो, पहले भी आप यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। And don't say me as a sir, okay? Say Raj only, okay? Second thing, sir, why you are not saying sir? पहला, आज आपको मैं मतलब इस चीज का बता दूं, सर मतलब होता slave I remain and you are not my slave first of all, okay? Say Raj, okay? थर्ड थिंग, जब आप वहां पे भी जाते हो, सर इट्स नॉट इमेंस अबाउट दोज थिंग्स, ओके? ओके। मीन्स व्हेन यू आर सेइंग सर, मतलब वो कॉर्पोरेट में नहीं चलता है। Where just you work, I work in the aviation also and the other field, and I have my own startup also, so I know about this scenario. So never ever say sir. और ओके, अगर वहाँ पे अगर सर आपको इम्प्लीकेबल लगता है तो आप यूज करो, ठीक है? क्योंकि ये यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं चल रहा है, ठीक है? हाँ जी। ओके। तो जब मैंने अपने आईएम में, तो उसमें सर नहीं मैंने बोला था, कि मैंने नाम से ही लिया था, बट उसका वे होता है बोलने का, जैसे as may I start, okay, Avineet, as you asked the question that जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, the way just you are answering those things, तो वो आपका कैजुअल बिहेव नहीं होना चाहिए, फॉर्मल भी होना चाहिए, कैजुअल भी, इन बिटवीन। क्योंकि आईएसबी का जितना भी इंटरव्यू होता है, मोस्टली क्या होता है कि दे आर वेरी रिलेटेबल अबाउट दोस थिंग, कि आपका कैरेक्टर भी जानना चाहते हैं, तो थोड़ा फ्रेंडली भी होंगे, ठीक है, और वो फॉर्मल भी होंगे। सो यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी एंड द बैलेंस बिटवीन दोस थिंग्स, ठीक ओके। है? गॉट इट। तो पहला चीज है कि आप जो भी है ना, 30 सेकंड का पहले इंट्रोडक्शन आप बनाओ, ठीक है? 30 सेकंड के इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि कैसे आपका रहेगा, ठीक है? आप अपने नाम से स्टार्ट किए, ठीक है? बहुत डीप डाउन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये बोलोगे, एज यू हैव गॉन थ्रू माय रिज्यूम, ओके, ओवरऑल जो सिनेरियो है आपका, बट आई एम ब्रीफिंग माई सेल्फ, एंड उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अपना सब कुछ, ठीक है? जो भी आपका पॉइंट है, जो सब सब कंपनी के बारे में आपको नहीं बताना है, ठीक है? कि मैंने इस कंपनी में ये काम किया, इस कंपनी में ये काम किया, इस कंपनी में ये काम किया, उसी में आपका टाइम चला जाएगा। बहुत शॉर्ट में आप पहले ही बताओ कि अभी आपका क्या रोल है, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हो, एंड पीछे के किस किस कंपनी में आपने काम किया। उसके बाद आप आ जाओ कि आपका आप किस कैरेक्टर के हो, ठीक है? विच डिफाइंस यू वेरी वेल, ठीक है? द कैरेक्टर विच यू आर। कैरेक्टर के बाद सीधा हॉबीज पे आओ, ठीक है। अब वो कोरिलेट करेंगे। आपने बताया पहले अपने बारे में, अब वो क्यूरियस होंगे, ठीक है? क्योंकि उनको सब कुछ नहीं मालूम है आपके बारे में, ठीक है? क्योंकि ये इंटरव्यू आपका ये नहीं है कि आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, राइट? कि यू नो, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, मैं यहाँ 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 हूँ। उनको उससे लेना देना नहीं है, वो पूछेंगे बाद में, वो एक एक चीज पिन होल करेंगे। ओके। तो पहले उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग अपना इस चीज को आप बनाओ कि सबसे इंटरेस्टिंग आपका 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फोकस करो, एंड इंट्रोडक्शन ऐसा रहना चाहिए कि आपको सोए हुए में अगर कोई पूछते तो सेम वर्ड ही निकले। अच्छा। यही एकदम रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स, ठीक है? एकदम बॉडी लैंग्वेज एकदम रिलैक्स, स्टिफ नहीं, बट रिलैक्स, ठीक है? गॉट। आपका 30 सेकंड में पहले इंट्रोडक्शन में जो आप बोलोगे, वो सारा चीज अपने बारे में, ठीक है? कि यू आर द प्रोडक्ट, थिंक लाइक दैट यू आर द प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग योर ब्रांड विद इन 30 सेकंड, ठीक है? तो मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्या हूँ अभी, वो आप बताओ, ठीक है? पीछे किसमें मैंने काम किया, वो आप बताओ, ठीक है? फिर आपको आपका कैरेक्टर क्या है, वो आप बताओ। फिर तीसरे पॉइंट में हॉबीज पे आ जाओ, जो आपने बास्केटबॉल, क्योंकि यहाँ रिज्यूम में आपका नहीं लिखा हुआ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज को, ठीक है? रिज्यूम में वो
बोलेंगे इस चीज को कि हॉबीज नहीं है, बट आपने एक्स्ट्रा, मैंने भी देखा है, मैंने खुद ही लिखा है आपका, तो मुझे मालूम है। ठीक है। हम्म, तो हॉबीज में जब आएंगे वो, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आपको हॉबीज क्या है। जैसे आपने बोला कि बास्केटबॉल है, ठीक है, हम्म, बास्केटबॉल, एंड दूसरा क्या आपने बोला कि एनजीओ में सोशल आपका सर्विस, करेक्ट। सोशल। सो व्हाट काइंड ऑफ द सोशल सर्विस जस्ट यू लुकिंग? सोशल सर्विस बहुत टाइप के होते हैं। हम्म, इट्स नॉट, तो उसमें ये दोनों जो बास्केटबॉल वाला जो आप बोलोगे, प्लेइंग एज अ गेम एज अ बास्केटबॉल, और सेकंड सोशल सर्विस, इस दोनों को डेप्थ में लेके जाओ। ओके, ठीक है, मतलब इस दोनों के बारे में आप अच्छे से पहले रीड करो। ठीक है। जो भी आपने किया वो तो किया ही किया। ठीक है। हम्म, सोशल सर्विस क्यों? वो हॉबी से कनेक्ट होगा। ठीक है। बास्केटबॉल क्यों? वो आपका कैरेक्टर से कनेक्ट होगा। ठीक है। और ये सारी चीज 30 सेकेंड्स में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। ये आप अपने साइड से पहले स्टार्ट करो। ठीक है। आप एक बार मुझे अगर कहीं पे अगर लिख के भेज सकते हो अपना कि आप क्या बोलोगे 30 सेकेंड में। ठीक है। हाँ, देख लेना कि वो 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम देते नहीं है। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ टाइम। ठीक है, ये मैं बना लूंगा सर। ठीक है, डन, आई विल मेक इट। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया। ये पहला चीज होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये सब जगह चलता है। ओल्ड इज गोल्ड, ये सही बात है कि हर जगह ये चलता है। एब्सोल्युटली। अब या अब सेकंड पॉइंट तो ये हो जाएगा कि अब वो आपको मतलब हर एक पॉइंट पे डिग करना शुरू कर देंगे। तो आप जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हो रिज्यूम में, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस वाइज से अगर वो 160% बोले, 40% बोले, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि 160% क्यू क्यू करके आपने लिखा है, व्हाट दैट मीन एक्चुअली? Okay, so 160% quarter on quarter, what this particularly means is that I am in a target based role. Every quarter I have certain target, let's say $100,000. So instead of $100,000, I've been achieving $160,000 on an average every quarter. So Is this it has achievable in the market also in the same way? absolutely it is. So in a way, I have been on a higher side within my team, but absolutely you can hit those numbers. Specifically, if you talk about the SaaS kind of business, you can actually. And how many teams will be there? So there are total 8 teams in my cohort. So I work for Adobe Business Direct, and there are 8 teams, which function in here. Why they choose you only? Well, to be very honest, when I applied for this particular role, I did not have relevant experience, but I had the passion to drive a business and I wanted to come into the front end sales. So they gave me as a challenge that, if I could take this on a contractual basis and prove my mettle on over there. And I never shy away in taking a challenge, and I was very confident that I can come across as a great salesperson. So I did take it up, and within my first quarter, I overachieved my targets and won an award which is called the Rookie Rockstar Award at Adobe. Okay, fine. अब यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, ठीक है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू रिटन ओवर हियर, बट सेकंड टाइम व्हेन यू सेइंग समथिंग, इनहेल और एक्सेल बहुत जरूरी होता है। ओके। हाँ जी। मैं थोड़ा, ठीक है, मैं बहुत छोटा छोटा चीज आपको बताऊंगा। बाकी लोग जो है वो आपको ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके होंगे, ठीक नहीं है। नहीं, ये बहुत बट जरूरी बट है। मैं दिस आपको इज एग्जैक्टली की व्हाट आई एम लुकिंग पॉइंट, फॉर। हाँ, तो व्हेन यू सेइंग ना, तो आपके सांस थोड़ा ज्यादा फूलने लगता है। ठीक है, कंट्रोल दोज थिंग्स एक्चुअली। ओके। ओके। थोड़ा ठहराव जरूरी है एक्चुअली, यू नो, व्हेन यू सेइंग समथिंग। फास्ट ना भी बोलो चलेगा, बट बी स्टेबल। ओके। ओके। और कुछ जगह पे आता है। आप कभी जब आप ये बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो पहला आप क्या करना कि आप रिकॉर्डिंग करना अपने हर चीज को, बोले हुए चीज को। ठीक है। उसमें आप सुनना कि आप कहाँ पे यू नो फंबल हो रहे हो। फंबल इज नॉट लाइक दैट, सबके साथ होता है। ठीक है। बट हाँ, ये जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा हटाना होगा।
यू नो सेंटेंस पूरा होना चाहिए। अगर कहीं पे पॉज लग रहा है या कॉमा लग रहा है, आप रुक जाओ थोड़ा सा, 1-2 सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर बोलो, चलेगा। वो हमारा आदत हो जाता है। सेल में मैं भी रहा हूँ, मुझे भी मालूम है ये चीज कि हाँ, ये चीज का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि और हमारा एक्शन रिएक्शन थोड़ा यू नो थोड़ा वायलेंट रहता है सामने वाले को, कि हाँ इम्पोज कर सके कि हाँ यस करेक्ट। करेक्ट। सो इसके कारण ये चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखने का, ठीक है, वो बहुत जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज करना होगा कि while saying the single thing, एक ही चीज को आप लेके चलो, कि जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 160% के बारे में, सो आपको उनसे आगे से सवाल नहीं करने का, ठीक है, कि 160% क्या है। ठीक है, जो आपने बोला दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, कि आपको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया एंड बोलना, दैट्स अ गुड थिंग, बट वहां पे क्या है कि 2-3 चीज आप मिस कर रहे हो। ठीक है, जो कि आप ये बोल सकते हो कि आपका पहला टारगेट क्या दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ, ओके, मार्केट बेस पे क्या इसका टारगेट का इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा, कि आप कितना जल्दी इस चीज को क्लोज डाउन करते हो। ठीक है, बट मुझे और देखने दो। चौथा, सबसे अच्छी बात है कि वो लोग भी आपका रिज्यूम, मैं इसलिए आपका रिज्यूम कल ही अभिषेक जी ने भेजा था मुझे, ठीक है, बट मैंने कल भी आपका रिज्यूम देखा नहीं था, सीरियसली बोलो तो मैं अभी देख रहा हूँ। उसका एक रीजन है, मेरे माइंडसेट में ये बैठ जाता कि हाँ आपके रिज्यूम में ये सब लिखा हुआ है, एंड मैं उस वजह से आपको बोल नहीं सकता। ठीक है, आप किसी चीज को अगर लाइव करना चाहते हो ना, तो एट अ मोमेंट कभी भी बैठ जाओ उस चीज को करने के लिए, वो आपके लिए लाइव हो जाएगा। बहुत फैक्ट बात है। सेल्स में भी ऐसे बोला जाता है कि सेल्स पिच तैयार किया जाता है तब हम लोग बोलते हैं, बट वो सेल्स पिच से कभी भी कोई इम्प्रेस नहीं होता है, इम्प्रेस होता है आपके वर्ड्स पे। ठीक है, एज अ लैंग्वेज, और आपका ऑरा क्या है वो डिपेंड करता है। Once your aura will evolve to the panel, definitely they will revolve into those scenario only. I always believe in the energy only, and I work into those things only. I really love it कि हाँ वैसा ही होता है, ये कुछ नहीं होता है सेल्स पिच और कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी दूसरे को भी दोगे तो आप जितना कर पा रहे हो वो उतना भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो कभी भी अगर स्टार्ट करो तो माइंड को ये सेट करके मत करो कि हाँ अब मुझे बैठना है और अब मुझे करना है। सडन उठो, रिकॉर्डिंग लाइन ऑब्वियस बात है, रिकॉर्डर आप ऑन करो, एट दैट मोमेंट में बोलना शुरू करो। उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग जो होगा एज अ लाइफ के लिए तैयार होगा। सडन सिनारियो अगर आया तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। जो दिमाग में है उठ के बैठ के बोलना शुरू कर दो। थोड़ा सा ये पागलपन वाला लगेगा, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। बट दैट्स अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि उनका क्वेश्चन कैसे थ्रो होगा आपको नहीं मालूम। इवन दो जस्ट आई कांट predict or I can't say those things also. I'm really say about these things कि मुझे भी नहीं मालूम है इस चीज के बारे में, क्योंकि हर पैनल का लेने का तरीका अलग होता है। ठीक है, उनका इन्वेंशन, इनविटेशन एंड रिप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट वे से होता है। तीसरा, हर बंदे से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आईएसपी में कोई पैटर्न नहीं है कि आपको पहले आपको ये पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपके हॉबीज से ही वो स्टार्ट करें। एंड मोस्टली आईएसपी जो रहता है, वो आईएसपी हो या आईएम हो, वो ज्यादा फोकस, जो टॉप आईएम हो वो ज्यादा फोकस आपके हॉबीज से करते हैं। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि वहीं से वो कैरेक्टर पकड़ते हैं, फिर कैरेक्टर से पूरा रिज्यूम को देखते हैं। ठीक है, छोटे कॉलेजेस में नहीं होता है, बट जितने बड़े कॉलेजेस है तो वो आपके साथ साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं। करेक्ट, ये तो मैंने देखा था। आज तो मैंने हॉबीज के बारे में प्रिपेयर कर लिया था,
बिकॉज मैं पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था प्रीवियस आईएसबी एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो आई हैड अ फेयर आइडिया ऑफ दैट. आपने देखा होगा कि इसमें मोस्टली आईएसपी पीपल से द सेम थिंग ओनली, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट. तो ये मैंने मुझे तो नहीं मालूम है इस चीज़ के बारे में, बट मेरे आईएम में ऐसा ही हुआ था कि जो मुझे बोला गया था, मुझे 30 सेकेंड्स दिए गए थे, उससे ज़्यादा दिया नहीं जाता है कभी भी बड़े कॉलेज में. 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता. तो उसमें 30 यू हैव टू से ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. You know, you don't have to say about your numbers and everything. Anyway, just they're going to ask each and everything in the later page. करेक्ट. So first of all, just you have to introduce in such a way that your character will also come. How you are very impactful for the other person also. Okay, and moreover that you're correlating your character with your hobbies. बोला जाता है साइकोलॉजिकल में ये चीज के आप जो हॉबीज चूज करते हो उसमें पर्टिकुलरली आपका कैरेक्टर झलकता है. आपको ये मालूम होगा. आप किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, आपको मैं बता भी देता हूँ. जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं वो ज्यादातर ये चाहते हैं कि वो पार्टी करें, लिखने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, अलग बात है. उसका एक रीजन है कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने माइंड से, जिसके कारण आईटी पीपल चाहते हैं कि एज कैफे में बैठे और आराम से बैठे रहे. ठीक है. तीसरा होता है कि एज अ बिजनेस पर्सन जितने भी होते हैं वो लोग इतना कैफे बैठ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि एक साइड में कोना पकड़ के वो कोई बुक को देखे कि आगे और कितना स्टेबल वो कर सके अपने चीज को. तो हर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. ठीक है. आप नोटिस करोगे आज भी अगर ऑफिस में जाके देखोगे कैरेक्टर से आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो वो कैरेक्टर आपके में दिखना चाहिए व्हाइल स्पीकिंग. ठीक है. ये बहुत छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ जिससे आपका जो आपके कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एंड मोस्टली दे आर नॉट फोकसिंग ऑन टू मच ऑन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो. मीन्स कम्युनिकेशन शुड बी गुड, वेरी फ्लुएंट. इट डजंट मीन दैट कि आपका एक एक ग्रामर पकड़ के वो देखना शुरू करेगा. ठीक है. यू डोंट हैव टू फंबल, यू डोंट हैव टू से हाँ. ओके. दैट्स द ओनली सिनेरियो दे हैव टू सी. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि वो पूछेंगे, जो कि ऑब्वियस बात है कि प्रेशराइज करने के लिए. ठीक है. 2-3 ही पैनल बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते हैं. आई एम जैसा नहीं बैठते हैं कि 7-8 बैठ गए एंड मोदी पूछना शुरू कर दिया. तो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स. सो यू आर ऑन द सेफर साइड इस चीज के लिए. ठीक है. तो बट द पॉइंट इज ऑल ओवर कि वो 3 लोग बैठेंगे और वो 3 लोग बहुत कोर में जाके पूछेंगे जो आप बोलोगे एंड जो आपने लिखा है. ठीक है. तो अपने रिज्यूम में जो भी आपने लिखा है एक एक ग्रामर. ठीक है. जैसे आपने लिखा है गो टू मार्केट प्लान. ठीक है. अब गो टू मार्केट प्लान आप क्रिएट करते हो. सो इसमें बहुत सारा वर्टिकल्स होता है गो टू मार्केट प्लान में भी, आपको मालूम होगा. बेसिकली गो टू मार्केट प्लान हम लोग अपने स्टार्टअप को देते हैं, स्टार्टअप जनरली यूज करते हैं. ठीक है. और हैव अ वीक राइट नाउ इट्स 13 ओनली. सो इस चीज को अगर एक जगह पे अभी भी आप देखो राइट मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अब क्या राइट, तो वहां पे राइट नहीं बोल सकते हो. ठीक है. आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऐसे कैजुअल में नहीं, वो कैजुअल पे भी लेके आएंगे. और हमारा दिमाग उस वे से है कि हम लोग जो करते हैं उसका एक्शन कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा. ठीक है. सो इस पॉइंट पे आप स्टिक रहो. पहला चीज ये है अपने फैमिली वाले को एकदम स्ट्रिक्टली बोलो कि जहाँ पे हूँ हाँ कुछ भी वहीं पे बोल दो. अब बार बार वो बोलते रहेंगे ना तो आप रुक जाओगे. करेक्ट. ठीक है. चीज मेरा डाउट था राज, जस्ट आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू हियर. मुझे ये पूछना था जो मेरा रेज्यूमे है
Will they have that too? Because जो मैंने अभी तक देखा है, they just gonna have my ISB application. So, so will they have my resume as well, the one which you're having, the one which I use for companies? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आपने रिज्यूमे भी तो वहाँ पे डाला होगा। I don't remember that. हाँ, But ठीक है. I must say Good morning, good morning, क्या हाल चाल है? Okay, got it. नहीं आ जाएंगे, ISB वाला चल रहा है। अभी मैं आपको 1 बजे कॉल But करूंगा। I must sure कि make sure और about वो your याद कर लेना, जो कल आंसर हर मैंने जगह दिया पूछा था। जाता है। मतलब सब सबमिशन का रहता ठीक है, है। SOP सबमिट करना रहता है, and you have to submit your resume also. Okay, ठीक है. क्योंकि आपका SOP के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। एक चीज मैं साफ साफ बताता हूँ, बहुत लोग ये बोले होंगे, आपको क्लियर रहना चाहिए आपके SOP में जो भी आपने लिखा है, ठीक है। दूसरा बात, आज आप एक चीज और करना कि आपने जो भी SOP लिखा है, ठीक है, कुछ वर्ड्स मेरे होंगे, ठीक है, मतलब लगभग वर्ड्स मेरे होंगे उसमें, ठीक है, बट किया हुआ सब कुछ एक्टिविटीज आपका है, राइट। मैंने सिर्फ उस चीज को बेहतर तरीके से आपको लिख के दिए है, ओके। अब उस वाले में ना बिहारी आदमी के टोन में बिहारी दिख ही जाता है कि बिहारी है। पेज आप प्रिंट आउट निकाल लेना सबका, चारों क्वेश्चन का आप निकाल लेना, ठीक है। एक एक वर्ड जो भी है ना उसको आप बहुत डीप डाउन से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें कोई वर्ड अगर आपको ना समझ में आए, डिक्शनरी से उसको ओपन करके देख लेना, Okay. कुछ वर्ड उसमें टफ होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको भी ना मालूम या मालूम भी होगा तो उसका क्लैरिटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ वो आपका नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें सारा एक एक वर्ड आप अंडरलाइन करो, ठीक है, एक एक वर्ड अंडरलाइन करो, ठीक है। एंड जहाँ पे भी आपको लग रहा है या तो आप डिक्शनरी से देखो, नहीं तो मेरे से आप पूछ लो, या आप इसे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। वो थॉरो हो जाओ आप, वो चार चीज थॉरो हो जाओ, जो चारों क्वेश्चन है वो थॉरो पे आप करो, ठीक है। जो रिज्यूम है उसका एक एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए, आंख बंद करके। और उसने मुझे कहा था कि मैं निकलवा दूंगा। कहाँ कैसे क्या तो जीमेल पे आई नहीं इसके, कौन वर्ड क्या है जिसके कारण आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं समझ गया। अगर यहाँ पे जैसे एक आपका नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है तो उस चीज का डर भी नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स ज्यादा लिख के रखते हैं, तो अब अगर उनका पूछने का रहेगा कि एडॉब GBD है तो GBD क्या है, जनरल बिजनेस डायरेक्ट। हाँ, तो मतलब ऐसा शॉर्ट वर्ड कहीं पे भी उनको दिखेगा तो उस चीज के बारे में वो पूछेंगे, ठीक है। तो उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना सारी चीज, ठीक है। मेरा मोटिव आज लेने का बस एक ही चीज था कि आपका, मैं देखना चाह रहा था कि मैं इसलिए वीडियो पे भी नहीं आया। अब क्या वीडियो पे आने पे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, हु एम आई एंड व्हाट एम आई, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके, जबकि अभिषेक जी ने बोला भी था कि आप वीडियो ऑन करके आप एक बार ले लीजिएगा, बट अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। दूसरे बार मैं जरूर फेस दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी का ये है कि आप ये सोचो कि आप सामने 3 पैनल बैठे हुए, ठीक है। जिस आपके माइंड में हमेशा एजम्पशन ये रहना चाहिए कि आपके 3 पैनल बैठे हुए, how your action will be on the reaction way, and किस वे से आप हर चीज को बोल रहे हो, ठीक है। कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे हूँ, कहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ये चीज बेहतर तरीके से मालूम रहना चाहिए। तो पहले आप, सबसे पहले आप आज जो करोगे वो पहला आपका काम होगा कि 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन करने का, ठीक है। एक टाइमर लेके बैठो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको रुकना है। 30 सेकंड का सेट करो, वैसे ही बजने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्रॉस कर गया, ठीक है। फिर उस चीज को रिकॉर्डिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ कट करना है, ठीक है, उस चीज को कट करो, क्योंकि आपको पूरा कवर करना है विद इन 30 सेकंड, ठीक है। अगर सारा नंबर और सब कुछ कैलकुलेशन अगर बताना शुरू करोगे वो 30 सेकंड में नहीं होता है, 1 मिनट लगता है उसका। 1.1 मिनट 30 सेकंड्स का होता है ओवरऑल, जो जनरल हम लोग बोलते हैं एज ए इंट्रोडक्शन।
ठीक है, Got it. 30 सेकेंड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए पहले 30 सेकेंड्स वाला आप करो। ठीक है, कहीं पे भी आप लिखो कि उस चीज को आप 30 सेकेंड में अपना हॉबी से लेके, और वो ये जरूर पूछेंगे रिज्यूम देंगे कि आपने हॉबीज कहीं लिखा ही नहीं, क्यों? अब तो आप रिज्यूम चेंज नहीं कर सकते हो, पहला बात। शायद मैं एक बार पूछ लूंगा कि आपने रिज्यूम दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अगर नहीं दिया है देन इट्स गुड, अगर दिया है तो भी दिक्कत नहीं है, बट आपने हॉबीज कहीं पे भी नहीं लिखा है तो वो सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे ही कि आपने हॉबीज क्यों नहीं लिखी है, आपका कोई इसका आंसर हॉबीज। तो अगर ये पूछते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब more than writing this, I like to talk about it, being completely passionate. So once somebody invokes this topic, I really want to have a conversation. बोल सकते हैं, बट श्योर रखना कि जब आप बोलोगे तो ये और इम्पैक्टफुल रहेगा। आपके पर्सनल फोन में अब कितना जब मैसेज इम्पैक्टफुल है, जब इतना पैशनेट हो, तो आपको इन एंड आउट तो मालूम होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बास्केटबॉल में अभी क्या करंट सिनेरियो चल रहा है वो भी आपको मालूम होगा। हाँ मतलब ये थोड़ा देखना पड़ेगा बिकॉज अब मैं बास्केटबॉल फॉलो नहीं करता, बट मैंने देख लिया था बिफोर जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। मैंने देख लिया था कि विंटर सीजन चल रहे हैं, विच इज द हॉट टीम राइट नाउ, एंड मैंने ये भी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर किया था कि कौन सा अच्छा प्लेयर आपको लगता है, क्यों लगता है, बास्केटबॉल क्यों अच्छा लगता है ओवरऑल। और क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी के डेट में। अच्छा कंट्रोवर्सी, हाँ दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी यू नो, आदमी को अगर किसी का डेप्थ जानना होता है तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी पूछता है। अच्छा उनसे ये रियलाइज होता है कि ये कितना पैशनेट है किसी चीज के लिए, क्योंकि एवरी स्टोरी आउट देयर कंट्रोवर्सी थिंग्स, राइट? ओके सो इफ यू नो द कंट्रोवर्सी, यू नो द क्रस्ट आल्सो। इतनी अच्छी रिज्यूम में से राज गौरव ने कह दिया हॉबी नहीं है। तो और क्या पूछ सकते हैं हॉबीज पे, करंट सिनेरियोस, कंट्रोवर्सीज। देखो, आप हॉबीज में जितना दोगे, ठीक है, आप जब बोलोगे भी कि मोर अबाउट जस्ट आई नीड टू यू नो स्पीक अबाउट आपका जो भी हॉबीज है, ठीक है, उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आई ऑलरेडी रिटेन इन, मतलब जहाँ पे आप एसओपी में लिखे थे वहां पे भी, बट आई डिडंट मेंशन ओवर हियर बिकॉज आई नीड टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, माई हॉबीज, व्हाट एम आई एंड व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर आई एम। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो जब आप बोलोगे तो वहां पे वो लोग जाएंगे फिर। ठीक है, वो भी तो खोजेंगे ना कि कहाँ पे आपने लिखा है। ठीक है, आप उनको अपने वे से घुमाने का कोशिश करो, उनको वहां पे लेके जाओ जहाँ पे आपने लिखा है। आप उनको एक बार थोड़ा सा यू नो, कभी भी कोई स्टोरी को जानने के लिए थोड़ा सा उनको ग्लिम्स चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप लिखा हुआ, अगर जो आपका लिखा हुआ है और आपके बात पे दोनों चीज अगर मैच करता है, आप जितना भी एसओपी लिखे हो, ठीक है, और जो भी रिज्यूम में आपने डाला है, वो आपके कैरेक्टर, आपके वॉइस, आपके थॉट प्रोसेस में अगर वो है, दोनों चीज सेम है, तीनों चीज, तो उनको दिक्कत नहीं है, तब इंटरव्यू बहुत इजी है आपका। वो ऐसा कुछ नहीं पूछ देंगे जो आपको नहीं मालूम होगा, या वो ऐसा ही चीज पूछेंगे जो आपको एकदम ही ना मालूम हो। उसमें भी अगर आपको आंसर आता हो तो आराम से आप बोलो कि हाँ मुझे आता है, थोड़ा सा पॉज लेके, ज्यादा पॉज मत लेना। ठीक है, जो आंसर ना आता हो तो उसमें ज्यादा पॉज मत लेना। उसका रीजन होता है कि आप जितना ज्यादा लंबा पॉज लोगे, ठीक है, उनका बिलीव उतना ज्यादा होगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मालूम है। ये ध्यान रखना। ठीक है, जितना कम पॉज में उसके बाद आप बोलोगे कि आई हैव द नॉलेज अबाउट दिस मच ओनली, बट just I believe that in the later phases I will read more about this. गॉट इट। More, not much more experience in this. That's why. बस simple sorted रखना है, बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है आपको। ठीक है, टू द पॉइंट रखना है अपने बात को, बहुत ज़्यादा घुमाने का ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी वो आपके
मोर देन स्किल्स से ज़्यादा आपके ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग को देखेंगे, ठीक है। आप ऑलरेडी ग्रूम्ड हो तो आपको दिक्कत है नहीं, ठीक है। ओनली यू हैव टू फोकस, you have to focus more about the way you sit, the way you look, एक मिरर के सामने आप बैठ जाओ, ठीक है। जब आप बोलते हो तो बोला जाता है कि सबसे अच्छा जो टीचर होता है वो आप ही होते हो खुद के लिए, वेरी फ्रैंकली जस्ट आई एम सेइंग, ठीक है। एक मिरर के सामने आप बैठ जाओ, ठीक है। कम से कम 6 दिन तो बैठो एटलीस्ट, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपका पोस्चर कैसा है, क्या बोलना चाह रहे हो। नो, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव किया है, इवन दो टू क्रैक माय IIM Ahmedabad also, to start my startup also, कि how to talk to the investor. Nobody will teach you about those scenario कि आपको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैं 10 बात आपको बता सकता हूँ यहाँ से कि आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, but the way you're talking is very different to the other person. So you have to leverage about those scenarios कि how you act and react, and how your modesty words should be in a very simple way. बहुत Got सिंपल था सच चीज है। तो यहाँ पे आपको आज बस एक ही चीज करो, आज आप 30 सेकंड वाला इंट्रोडक्शन कैसे भी तैयार कर लो, ठीक है। ठीक है, जितना जल्दी आप तैयार कर लोगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। उसमें बिल्कुल। हॉबीज जरूर रखो, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी रिव्यू में आपने अभी तक जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया, उसमें ज्यादातर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आप क्या कर रहे हो, कितना नंबर आप पाए, कितना आप अचीवेबल हो, कितने अच्छे हो, राइट। यूजुअली लोग यही बोलते हैं और यही बोला जाता है। मैं समझ गया आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट विद अ नेम। प्रॉब्ली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आई वुड से माय नेम इज अभिनीत एंड आई एम बेस्ड इन गुड़गांव. As per my profession, I am an accomplished computer science engineer, and I'm currently working in tech sales industry within the SaaS department, software as a service. As if I talk about myself, I love to say that I'm an extrovert personality. At the same time, I'm amicable and I'm a people's person. I love to speak and talk to people. And if I talk about my personal and professional experience, so I have had a chance to work with Fortune 500 companies like Dell, currently working for Adobe. I also had a chance to have an international experience at CSI University, France, and intern for some cool startups like Unacademy and MG Motors. If I talk about what I love to do in my free time, I love to play basketball, which is the second fastest sport in the world. And apart from that, since I'm a strong believer in creating an impact in the society, I also love to deliver social services. So, how is this as an introduction? ओके, ये सही है, ये सही अच्छा है, है, हाँ परफेक्ट. ये अच्छा है। थोड़ा बहुत इसमें आप और चेंजेस कर लेना, ठीक है। ये तो मतलब मैंने बस एक एक- छोटा सा फ्रेमवर्क बताया कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस हाँ तरह से लिखूंगा हाँ कुछ. हाँ, सही है, सही है, ये बेटर है, ये पिछले ठीक बार से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। आपका जो मुंडी है, ठीक है, गलत वे में, है. कस हम लोग का आदत हो जाता है when we are dealing with the customer, we usually gesture our hand and head so much कि हाँ उनको समझ में आ रहा है ना, you understand this thing, right? You understand this thing? तो हम लोग नॉट करेक्ट. बहुत ज्यादा करते हैं, लेफ्ट राइट अच्छा. अप डाउन, वो ओके. स्टेबल रखें, ठीक है। ओके. वो थोड़ा सा स्टेबल, और आईज आपका बहुत ज्यादा चारों तरफ जाता है, मैंने से ओके, तो वो आपका आईज जो रहता है वो सर्कल वे में जाता है। एक बार आप अच्छा. करके, हाँ, मैंने नोटिस तो पर नहीं किया, बट आप सही कह रहे हो. ठीक है. मैं इसलिए पर्टिकुलर इस चीज के लिए हो रहा हूँ कि ये चीज आपको बहुत जगह ब्रीदिंग से लेके हर चीज बहुत इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ओके. 6 to 7 days के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक दे रहा हूँ कि ये चीज आप जरूर करो। प्लीज मेडिटेट फॉर 5 to 10 minutes, ओके. ज्यादा मत करना, दिक्कत हो जाएगा फिर वो, ठीक है। कि ये मेडिटेशन जो कभी नहीं किए, ठीक है, आप आइज बंद करके नहीं भी कर सकते हो तो 15 से 20 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके रखो, ठीक है, और 10 मिनट के लिए ऐसे बैठो,
ठीक है, बट व्हेन यू आर मेडिटेटिंग उस समय आप कुछ मत सोचो, आँख खुला भी रहे तब भी चलेगा, बट कुछ मत सोचो, ब्लैंक रखो अपने आप को, ठीक है। और ब्लैंक होने के बाद जस्ट उसके बाद ये सोचो कि आपको करना क्या है, ये सारे वाले जितने सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके आओ। या तो आप लिखना शुरू कर दो या तो बोलना शुरू कर दो। आप 3 टाइम करो ऐसे, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और जब भी आप बैठो बोलने के लिए मिरर के सामने ही बैठ के बोलो। हाँ कहीं 9 मत बैठ के बोलो, मिरर के सामने आपको खुद पता चल जाएगा। हो सकता है कि कुछ जगह पे आप खुद हंसना शुरू कर दो। I'm sure. और वो चालू कर लो, व्हाट्सएप चालू कर लो। हेलो, चीज और आपको बता रहा हूँ, रेयरली बहुत कम लोग बताए होंगे। यू नो, जब आप मिरर में खुद को देखोगे ना कंटिन्यूअस, सोमवार को है 15 को, तो हो सकता है कि आपको खुद साई फील हो। ना 14 को मेरा नहीं है, Correct. 17। हो सकता है कि आप अपने आईब्रो, हाँ यही तो है, बाकी कल कंफर्म हो जाएगा। कल 3-4 को विजिट है ऑफिस में, देखना शुरू कर दो, ठीक। आपका नजर झुक जाएगा। बट 15 वाला पार्टी है वो तो वही लड़की है द्वारका वाली जिसका कैंसिल हुआ था एक बार। when you see 17 वाला है पाई ग्रेटर नोएडा। eye to eye with your eyes only, okay, आप किसी के साथ भी आई कांटेक्ट इजीली कर सकते हो। ये सेल्स का मैं बता रहा हूँ आपको। एक और चीज, बहुत कम लोग ये चीज बताते हैं, बट ये साइकोलॉजिकल में ये मैं खुद रिसर्च पेपर लिखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। 5 डेज के लिए करो, अच्छा लगेगा। अब 2 दिन करो, फिर मैं तीसरे दिन आपसे पूछूंगा फीडबैक क्या है, बट एक बार आप करके देखना। Perfect. ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे चीज है जो कि आपको करने के, ठीक है। बहुत जैसे ऊपर में आपने बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, टेक सेल्स, सैस सेल्स, ठीक है। तो ये 2 वर्ड जो है, सैस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है। तो एक बार सैस को आप प्री डिफाइन कर लेना, डेफिनेशन, क्योंकि कुछ भी पटक सकते हैं इसमें से, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे बोल्ड करके भी लिखे हो, और इस चीज को जो भी आप बोल्ड करके आप लिखे हो, सारे को बहुत डीप डाउन में लेके जाना, सारे का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर, बट हाँ आपने जितना काम किया है और जिस वे से आपने लिखा है कि हाँ बिल्डिंग एबिलिटी, स्किल्ड इन टेक सेल्स, if I'll say that skilled in the making the company, I have skilled in making the company, so definitely they will ask that what kind of a company you are going to make. Correct. So I have lots of thinking कि हाँ मुझे कैसा बनाना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी आप बोलोगे उसका आप रिकॉर्डिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर वर्ड उसके बाद आप सुनना, ठीक है। हर सेंटेंस में एक वर्ड आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर उस पे प्रिपरेशन करना, कि उनको लूप होल ढूंढने को ना मिले। आप जितना सिंपल रखोगे वो उतना कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं पाएंगे। आप जितना अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ही ज्यादा वो चाहेंगे कि और कॉम्प्लेक्स हो जाए, और बच्चा इस वजह से बोल ही ना पाए, क्योंकि किसी को नहीं आइडिया है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमको डेप्थ डाउन में नहीं मालूम होता, हम लिखने से हमें लिख देते हैं, बट हमें आइडिया नहीं होता है उस चीज का। एक चीज सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एसओपी का कह रहे थे कि आई नीड टू नो एवरी वर्ड, तो do they expect me to speak in the same language it is written, or should I just know the crux of it and still know the meaning of all the words which are there? क्रक्स क्रक्स बस क्रक्स Crux ना, ठीक है। मींस अगर आप सेम टू सेम मतलब पूरा थॉरो अगर बोलना शुरू कर देंगे तो उनको लगेगा कि आप रट के आ गए। Right. यू आर नॉट द सेम पर्सन, यू नो यू हैव द फोटोग्राफिक माइंड कि हाँ आपने पूरा रीड कर लिया एंड यू नो ईच एंड एवरी वर्ड एंड यू सेइंग द सेम थिंग।
डोंट हैव टू सपोज टू डू द सेम थिंग, बट हाँ उनको लगना चाहिए कि जो आपने लिखा यू आर द पर्सन हु हैज रिटन, करेक्ट, क्योंकि उसमें तो लिखना प्रॉब्लम नहीं अलग आएगी। होता है। हाँ, तो लिखना अलग होता है, बट व्हेन यू सेइंग इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, बट द क्रक्स इज द सेम। उनको क्रक्स से यस, लेना देना। बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। एंड एक चीज और, अभी मतलब देखिए मुझे आपने कैसे किया, आपने नोटिस किया, हाँ, अभी आपने नोटिस की, इसलिए जस्ट मैंने अभी आपको बोला। अच्छा ठीक है, वो कैजुअल होंगे, ऐसे ही होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये बहुत श्योर। मेजर, अगर आप इस चीज को संभाल लिया ना, आपका पक्का मैं लिख के बोल सकता हूँ कि आपका इजीली क्रैक कर सकता हूँ। मैं अभिषेक को बहुत पहले जब आपका रिज्यूम देखा था, जब आपका लिखने का मैंने देखा था, तभी मैंने बोल दिया था कि इनका आराम से आईएएसबी निकल जाएगा। आप पूछ के देखना। वो वरीड थे कि उनका कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बोला नहीं थैंक अभी, ठीक है, यू, थैंक यू सो मच। बट मैंने उनको ये चीज बोल दिया था कि इनका हो जाएगा। वो बोले भी थे कि आप करवा दोगे, मैं बोला कि ये खुद ही हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रूम करना है, बाकी वो कर लेंगे। बस मैं, राज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़े ना टेक्निकल क्वेश्चंस इन जीमैट क्वेश्चंस को लेके स्केप्टिकल था कि इफ दैट डजंट कम अप। नहीं 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 नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जीमेट का क्वांट्स का बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मेमोरी में अभी भी बैठे हुए होंगे, यू नो, जो आपको लगा होगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ना, कभी कभी हमारा लग भी साथ दे देता है थोड़ा बहुत, you know। मैंने ठीक भी है, जीएमएट का एग्जाम दिया हुआ है, सो आई नो। तो यू नो मुझे याद रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। तो एक बार आप ना थोड़ा बेसिक ना थोड़ा थॉरो कर लेना, सर्कल, यू नो, पैरीमीटर और ये सब चीज का, ठीक है। एक बार देख लेना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बट वैसे पूछते हैं क्वांट के क्वेश्चंस एंड ये सब टेक्निकल? बहुत रेयरली पूछते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। ओके, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। दूसरी बात है कि आप फ्रेशर वे से नहीं जा रहे हो, ठीक है। करेक्ट, तो जब आप फ्रेशर वे से अगर नहीं जा रहे हो तो आपसे इतना नहीं पूछेंगे, ठीक गॉट इट। है। अगर फ्रेशर जाते तो फिर ज़्यादा पूछते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पूछने के लिए कुछ रहता ही नहीं। अभी आपके पास बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ गॉट है, वो इट। सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट पे लेके बोल अच्छा, सकते, जो आप लिखे हो उस चीज के बारे में पूछें, उस चीज के बारे में डेप्थ पूछेंगे। नहीं, मैं एक्चुअली आईएसबी का एप्लीकेशन देख रहा था, तो मैं व्हाट यू से एकेडमिक रिकॉर्ड्स आर आल्सो देयर सेमेस्टर वाइज। तो मुझे लग रहा था किसी इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चेरी पिक करके ना पूछे बस। सिर्फ अगर पूछेंगे भी, अगर आता है, अगर गलत भी आता है, तो वो सिंपल सा यही बोलना है कि फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एंड विच आई गेन द नॉलेज, आई नो अबाउट दिस मच ओनली, ओके। कुछ चीज मैं भूल गया हूँ एज मेरा वर्किंग 5 ईयर जो भी आपका 4 ईयर्स है 5 ईयर्स है, बट मुझे ध्यान नहीं है। 2.5 इयर्स है बट मेरा, चलेगा ये बोलना? ओके, मुझे मुझे नहीं मैं सीरियसली बोला ना कि मैं सडन देखा हूँ हाँ, आपका, इसलिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तो करेक्ट, अगर 2.53 भी है तब भी ज़्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत सारे फ्रेशर भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सा आपको यही बोलना है कि मुझे ध्यान नहीं है, बट आई हैव द नॉलेज वेयर दिस आई वर्क, ओके, एंड आई विल स्पीक अबाउट दोस थिंग्स जो भी आप पूछोगे, दैट्स फाइन फॉर मी एक्चुअली। नहीं ठीक है, आता, नहीं आता, भगवान थोड़ी है knows each and everything and करेक्ट। remembers each and everything। बहुत हाँ जी, यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको अगर हिस्ट्री वही। पढ़ रहे हो तो करेक्ट, करेक्ट। मैंने एक्चुअली वैसे मैथ। सब प्रिपेयर कर लिया था। मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एसटीपी, आइडा मॉडल, 7 Ps और करंट अफेयर्स, मैं सब तो पढ़ के बैठा था। बट मैं ही सोचा था बस ये सब ना टच हो।
बट ये टच अगर आप बोलोगे तो ये टच करेंगे, ये टच करेंगे तो हो सकता मैं बात ही नहीं करता, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन में देखा होगा, इनफैक्ट इन माय एप्लीकेशन आई नेवर डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट. I discuss about the language, I discuss about my work, I discuss about the sports, that's all. बस सही है, वही चीज चाहिए उनको, जो ठीक आप है, दिखाओगे उसी में से वो पूछेंगे, जो चीज आप ठीक है, बताओगे, जिस रास्ते आप जाओगे ही नहीं उस रास्ते वो लोग भी नहीं जाएंगे. परफेक्ट. प्रेशर देने के लिए हो सकता है कि वो पूछे, तो आपको जो आता हो, जो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बोलता हो, ठीक है, आप वो बोलो, बट बोलो कि आई डोंट हैव डीप नॉलेज अबाउट दिस थिंग, बट इन द फ्यूचर डेफिनेटली जस्ट आई विल ब्रश अप ईच एंड एवरी सेगमेंट व्हिच यू हैव आस्क्ड मी. बस आप क्लियर कर दिए कि मैं ब्रश अप कर लूंगा, मुझे इतना आता है, मैंने बता दिया. उनको ऑनेस्टी चाहिए बस. मतलब जो मुझे नहीं आता, आई डोंट बीट अराउंड द बुश, मत देता हूँ कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अगर कोई बोल भी रहा है यहाँ पे कि आपको उस चीज के बारे में एकदम पढ़ लो, एकदम ये कर लो वो कर लो, नहीं, पढ़ लो अच्छी बात है, वो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा और बोलने के लिए आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो बेटर है, लेकिन एकदम डीप डाउन में घुसने का जरूरत नहीं है आपको. करेक्ट. ये कभी मत करना, क्योंकि आप जितना वर्ड्स के साथ प्ले करोगे उससे ज्यादा वो लोग वर्ड्स के साथ आपके साथ प्ले करेंगे, ये ठीक ध्यान है. में रखें. और वर्ड्स जितना ही सिंपल होए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स का बहुत चीज मानो, इकोनॉमिक्स बहुत 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 ज्यादा वास्ट है, या साइंस बहुत वास्ट है. करेक्ट. एक टर्म्स भी अगर ऐसा पकड़ा गया कि हाँ आपको नहीं मालूम, तो उसी में आपका पूरा इंटरव्यू चला गया. नहीं, मैं तो मतलब ये बोलता हूँ बस कि आई हैव अ फेयर आइडिया ऑफ अबाउट एक्स वाई जी थिंग्स, एंड बस इफ यू बस आस्क मी बस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन. अगर कुछ नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ कि मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट वेरी अब कॉन्फिडेंट एट. मैं बोलता हूँ एक पॉजिटिव नोट पे आप चलो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, मीन्स दे अंडरस्टैंड यू आर द कैपेबल दैट यू आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू. सिंपल सर, ISB इज द बिग कॉलेज. करेक्ट. एक दिमाग में कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट दोनों के बीच को बैलेंस कैसे करना है वो आपको मालूम है अच्छे से. ये सेल्स में सिखाया जाता है. करेक्ट. ठीक है, तो इन बिटवीन जब आप बोलते हो ना, so you have to balance out each and everything so that the person will understand that he have the knowledge fairly for each and everything, but where just he work, he's going into the excellence. Simple. करेक्ट. नहीं, आपने वैसे ये चीज बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी. मेरे को ना ये फीडबैक कई जगह से मिला है. इनफैक्ट मैं खुद भी फील करता हूँ, इफ आई नो अ रिस्पॉन्स टू समथिंग, मैं ना बहुत जल्दी में उसका आंसर देता हूँ. मतलब मैं नॉर्मल बात करूंगा तो उतना नहीं करूंगा. हाँ, वो मुझे मालूम है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आप, करेक्ट. मैं जानता भी नहीं, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके रखा हूँ ना, कि मैं ऑब्जर्व ज्यादा कर पा रहा हूँ आपको. करेक्ट. करेक्ट. अगर मैं वीडियो ऑन करके रखता हूँ तो आप मेरा चेहरा देखते हैं, मैं आपका चेहरा देखता हूँ. एब्सोल्युटली. और उसमें क्या होता है ना कि यू आर वेरी रिलैक्स्ड एट दैट मोमेंट. हो सकता है कि कुछ चीज बेहतर आप कर सको. जब वीडियो ऑफ रहता है आपको लगता है कि आप किसी अननोन से बात कर रहे हो, जिस मालूम ही नहीं है कि उसका फेस, आप दिमाग में वो चलना शुरू हो जाता है कि इस बंदे का वॉइस अगर ऐसा है तो ये कैसा हो. करेक्ट. एट दैट मोमेंट am I audible? Yeah, I think you got stuck in the middle, but yes, now you are. Okay. So कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको उस पर वर्क करना होगा. पहला जो आपका इंट्रोडक्शन है, आप खुद ही फ्रेमवर्क कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, उसको बस थोड़ा सा निखारना और जरूरी है. बिल्कुल. Little bit more fair and beautiful words. आई थिंक वो मैं एक बार चैट जीपीटी पे डाल करके या गूगल बार्ड पे डाल के ना उसको एक बार पैराफ्रेज कर लूंगा तो बेटर है, आप उसी पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि चैट जीपीटी अभी के डेट में सबसे अच्छा है. चलो,
हाँ मतलब मैं वही कर रहा हूँ आजकल। ठीक है। मोस्ट पीपल थिंक दैट कि चैट जीपीटी पे जो दिया हुआ है, सी when you're writing your SOP or any kind of things also, but SOP पे अगर चैट जीपीटी, it doesn't matter, क्योंकि किया हुआ तो आप ही का है ना सब कुछ। वही What वही you आई have थिंक लोगों done, को प्रॉम्प्ट डालना नहीं आता है। अगर आप प्रॉम्प्ट अपना खुद का इंटर करते हो और उनको बोलते हो कि बस पैराफ्रेज कर दो या इसको सिंप्लीफाई कर दो या प्रपोज अ डिफरेंट ड्राफ्ट, तो वो बेटर रिजल्ट फेच करता है। हाँ हाँ, तो आप उसी तरीके से जो आप बोले उसको चैट जीपीटी पे डालो, वो एग्जैक्ट आपको बिल्कुल। देगा, ठीक, एंड उसको रट जाओ। ठीक है जी। बहुत ठीक है। सिनेरियो ये रट जाओ, क्योंकि ये अगर पहला इंप्रेशन अच्छा बैठ गया और आपका 20 मिनट से ऊपर चला गया इंटरव्यू, तो शॉर्ट शॉर्ट भगवान को क्रॉस करो एंड बोलो कि हो गया आपका सिलेक्शन। अच्छा। ठीक। 20 मिनट तक अगर हुआ और तब वो लोग बोल दिए कि ओके फाइन, या तो आप बहुत अच्छे हो। अगर 15-20 मिनट का कोई इंटरव्यू जाता है, ऐसे आईआईएम में 15-20 मिनट या 40-30-35 मिनट्स का भी नहीं जाता है, एक एक घंटे का जाता है। मेरा जो हुआ था इंटरव्यू 1.5 आवर्स का हुआ था, ओह शिट। क्योंकि मेरा रिज्यूम बहुत गंदा है एक्चुअली, बहुत मैसिव है एंड हाँ सब प्रोफाइल करेक्ट, मैं अच्छा, ही देख रहा था। बहुत डाइवर्सिफाइड काम किया आपने। हाँ वर्सटाइल प्रोफाइल है, जिसके कारण उनको भी दिक्कत हो रहा था एंड करेक्ट। उनको स्टेबिलिटी का भी लग रहा था। बट मेरा पॉइंट यही था कि lastly just I have to do my own startup, so I know each and everything from the ground level. So यहाँ पे वो लोग रुक गए, तो उनको मालूम चल गया कि मेरा इंटेंशन क्या है। करेक्ट। When मेक they come सेंस। to know your intention and why you have done the past things, तो वहीं पे वो पॉज हो जाता है। वैसे मैंने शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल में अपना ये प्रिपेयर किया है दैट आई वांट टू बी अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। उसका जस्टिफिकेशन ये रखा है कि दैट सिंस आई हैव वर्कड इन टेक सेल्स फील्ड एंड दैट टू एज अ सेल्स पर्सन, सो आई हैव हैड अ फेयर आइडिया अबाउट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिएक्शन। सो वन थिंग व्हिच रियली एक्साइट्स मी इज हाउ वी सेट द टोन ऑफ अ प्रोडक्ट विद इन द मार्केट, and that is the very अब reason I would want to take the position of product marketing manager. ठीक है, ये बोले एक चीज आप ध्यान में रखना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप पूछेंगे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है। When the person will be satisfied, वो सिनेरियो पुट अप कर देंगे यहाँ पे कि ऐसा ऐसा है, डेट द कस्टमर सेटिस्फाइड, तो आपको बताना है कि कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको Correct. यू हैव टू बिलीव टू द कस्टमर दैट यू आर द सेटिस्फाइड, To नोबडी इज be very सेटिस्फाइड। honest, I think customer satisfaction term is now obsolete. Now in the market, what you have is customer success. So is the customer able to gain some success with your product? If the answer is yes, that's when you say that the customer is satisfied. करेक्ट। Okay. Cool. Anything else, sir? राज राज Okay. Maybe आप मेरे को पढ़ा रहे हो ना, तो बड़ी सर वाली वाइब वैसे ही आ रही है। नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप जिसको सर बोलना है आप सर बोलो, बट मैं बहुत इवेंचुअली बहुत शुरू से किसी को भी सर नहीं बोला हूँ। अच्छा। नहीं बोलते तो हम भी नहीं है कंपनी में, बट जस्ट दैट यू नो। सर नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैं यूजुअली मैं सबको यही पूछता हूँ कि सर का फुल फॉर्म मालूम है या नहीं मालूम है। इवन इन द इंटरव्यू आल्सो दे आस्क मी अबाउट दिस क्वेरी कि यू नो द फुल फॉर्म ऑफ द सर। मैं बोला कि हाँ, ये ब्रिटिश का था, ब्रिटिश से भी पहले यूरोप का था इस चीज का, ठीक है, कि उन्होंने ये फॉर्म किया था कि स्लेव आई रिमेन। एंड सर मतलब सर उन्हीं को आप बोल सकते हो कि जो आपको लाइफ टाइम के लिए सर्विस देता हो, एंड नोबडी इज गिविंग द फीडिंग मी फॉर द लाइफ टाइम। तो करेक्ट। सर पता ही नहीं, रिस्पेक्ट सर इज वेरी डिफरेंट। So when you own the respect to someone else, then you have to say sir. Absolutely. That's very true because you are the inspired for that person and बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप उनसे लिए हो, that's why you're saying so.
क्योंकि उनके पाथवे में आप कहीं ना कहीं जा रहे हो. That's why. तो ये थॉट प्रोसेस हमेशा फॉर बीइंग एज अ लीडर यू सपोज टू नो ईच एंड एवरी वर्ड वेरी प्रिसाइजली. Absolutely. तो बाकी सारा चीज आपका सही है. ठीक है. बस ठीक है जी. 4-5 थिंग है कि नॉडिंग ऑफ योर हेड, आईज शुड बी कांस्टेंट. ओके, नॉट अ कांस्टेंट मतलब एक ही घूरते हुए रहे स्टेयरिंग, नॉट लाइक दैट. Absolutely. ठीक है. थर्ड थिंग कि एज अ ब्रीदिंग का बहुत जरूरत है. फोर्थ थिंग कि they understand you are the person who comes from that kind of background who want to make something bigger. It's just like a short film which you are doing. ऐसे ही समझो आप. And for short filming you have to mirror by yourself so many times so that you can understand what you are. ठीक है. ठीक है. तो ये सारी चीज अगर आप कर लेते हो, मैं लिख के आज आपको लिख के देता हूँ कि आपका आईएसपी में हो जाएगा. थैंक यू सो मच. हो जाता है तो फिर लेट्स मीट, फिर हम पार्टी करते हैं. आप एग्जैक्टली रहते कहाँ पे, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग दैट? मैं गुड़गांव में हूँ, सेक्टर 44. अरे परफेक्ट परफेक्ट. आई स्टे इन सेक्टर 49 गुड़गांव. ओके, हम लोग बहुत नियर बाय में हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नहीं एब्सोल्युटली, ये जैसे ही होता है देन आई विल मेक श्योर दैट वी मीट, है ना? श्योर डेफिनेटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये हो जाएंगे. बस ये है कि आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट चीज पे फोकस अगर आप कर लेते हो, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा. डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. और दिमाग में हमेशा बोलो कि मेरा हो जाएगा. एक थोड़ा सा भी ये शक मत रखो कि नहीं है. कोई भी कुछ भी फीडबैक दे दे, आप बोलो कि मेरा हो जाएगा. मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 बार आप बोल लो ना कि मेरा हो जाएगा, you will crack the interview. Absolutely. Just say who is the best, I am the best. I am the best. Correct. I always do those things while giving the interview or giving the speech anywhere actually. मैं यही बोलता हूँ, who is the best, I am the best. I know I am the best. I can do very easily. I know who am I. Correct. ठीक है जी. बहुत छोटा छोटा चीज है, आप उस चीज पे वर्क कर लो, बाकी आपका सारा चीज अच्छा. इसलिए मैंने जब आप स्टार्ट किए थे बोलना, इसलिए मैं आगे कुछ पूछा ही नहीं आपसे. आपके बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको उस 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि आप कैसे हो. नहीं, मैं 30 सेकंड्स का ये प्रिपेयर कर लेता हूँ. नेक्स्ट व्हेन विल बी मीटिंग फॉर द मॉक इंटरव्यू? आई थिंक 1-2 मॉक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. थोड़ा सा मैं 2 दिन में भी ले लेता हूँ कि मैं इस पर प्रिपेयर कर लूँ, मतलब नॉर्मल आपने जितनी चीजें बोली इनकलकेट करने के लिए, एंड देन प्रॉब्ली वी कैन मीट. श्योर. प्रॉब्ली आप अभिषेक सर उनको बता सकते हैं, एंड देन हम मैं बता दूंगा. ठीक है. ऐसे मैं चाहूंगा कि 2 दिन के बाद ही हो जाए तो ज्यादा बेटर. मैं भी ये चाहूंगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट भी रहे ना आपको दिखाने के लिए. मैं खुद चाहता हूँ कि आपका होए. You are the person who deserve in the ISP. Okay. And moreover, just मुझे आपका nature character अच्छा लगा. You know, you're not just like the person that I achieved this much and I know each and everything. So by face I can recognize that you are the honest person, the way you are and everything. तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले जो आपका कैरेक्टर है उसको और अच्छे से निखारो आप अपना. ठीक है. कि मेरे टोन से, मेरे आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसा है, बट मेरा फेस एंड मेरा आवाज दोनों ही मैच नहीं करता कभी. ठीक है. मैं सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ. तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब कर रहे हो तो आपका मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी देखे हैं कि होने का चांसेस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके पास वर्ड्स अच्छे हैं, वोकैबुलरी अच्छे हैं. ठीक है. बोलने का तरीका अच्छा है,
तीसरा, आपको मालूम है कि आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज के लिए कि मैंने क्या किया है. करेक्ट Maybe just you don't have deep knowledge about the subject wise, but you have the knowledge what you are doing right now. करेक्ट दैट आई हैव हाँ, तो बस वही चाहिए, उनको भी वही चाहिए. परफेक्ट है फिर इसलिए बस ये सारे चीज पे आप काम करो, डेफिनेटली आपका शॉर्ट में हो जाए. यहाँ तक एब्सोल्युटली नहीं पहुंच के आए हो, मैं ये लिख के देता हूँ कि होगा ही होगा, किसी भी तरीके से होगा. परफेक्ट है नहीं आई विल टेक कहाँ योर पे वर्ड आपका, कहाँ पे मतलब इंटरव्यू कहाँ देने के लिए बुलाए हो? ये इन्होंने बुलाया है आईटीसी आपका जो उसमें साकेत में शेरिटन आईटीसी शेरिटन साकेत ओके, फिर तो दिक्कत है नहीं, दूसरे सिटी में है नहीं, हाँ अपने ही मतलब बस सिटी, तो सब्जेक्ट की करेक्ट बात नहीं है. तो हाँ जी हाँ जी सुबह आई थिंक 10:45 का स्लॉट मिला है मैंने जितना अभी तक पॉडकास्ट में देखा है आपका तो कोई रिकमेंडेशन भी है क्या? रिकमेंडेशन एज इन मेरे बॉस की तरफ से हाँ. हाँ जी रिकमेंडेशन गया हुआ रिकमेंडेशन बहुत अच्छा गया बिकॉज मेरी जो बॉस है शी रियली वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन तो जब उनके पास आया था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था शी शेयर्ड अ स्क्रीन एंड उन्होंने मेरे सामने और इनफैक्ट कुछ रिस्पॉन्सेज मैंने उनको लिख के दिए थे तो उनके पास आई थिंक एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ये जो कैंडिडेट है व्हाट्स द लेवल ऑन विच यू विल रैंकिंग हिम टॉप 50% you've seen in your career टॉप 10% या बेस्ट I've ever seen तो उन्होंने बेस्ट I've ever seen पे टिक किया तो मतलब रिकमेंडेशन तो बहुत अच्छा गया ठीक है. आई थिंक सो अभिषेक जी भी आई थिंक सो रिकमेंडेशन दिए हुए हैं अच्छा वो उनकी भी तरफ दिया से. हाँ, ओके ओके आई थिंक सो उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन गया हुआ है, आपके बॉस की तरफ से भी रिकमेंडेशन गया हुआ है. तो इतना तो करेक्ट सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपका जो है और वो पॉजिटिव वे में ही गया हुआ है. ठीक है, बस उसको वर्ड्स में कैसे पिरोना है वो आपका काम है. ठीक है.